students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back today with a new lecture on the topic biological classification. So we were doing, or rather we were will continue with the kingdom fungi and its classes. Now we have seen the characteristic features of kingdom fungi. In that also we have seen in detail the asexual methods and the sexual methods of reproduction that we see in funguses. So today we'll see the classes. ठीक है, in this kingdom कौन कौन से division and उनके classes. Means the kingdom fungi is further divided based on the mycelium, based on the mode of reproduction. They are further classified into 4 categories. What we can say is phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes. Now in this session we'll see the first 2 of it, and in the next we'll see the other 2. So this kingdom fungus will get finished over here, and then we can start with the other one. So without wasting any time, let's start with this. So phycomycetes. So we'll start with the phycomycetes. Examples need to learn over here is mucor, then is rhizopus, which we call it as bread mold, or bread fungus normally, and albugo. It's a parasite on parasite fungus on mustard plant. ठीक है, तो ये 3 MCQs potentially, 3 में से 2 तो MCQ surely हो सकते हैं. So you have to learn these binomial names of these funguses. Now आते हैं उसके habitat पे. अब general habitat हम हर fungus का जानते हैं. Basically जहाँ पे moist and damp places होते हैं, then aquatic जहाँ पे पानी ज्यादा होगा obviously, and decaying woods. So in this phycomycetes are generally found in this damp places, damp moist region where there is abundance of water over there. So generally ये उनका habitat है. Next, these are obligate parasites in case of plants. Means the fungus which grows on the plants, they are they generally cause diseases of the plants. So they are obligate parasites for the plants. General fungus तो सबको पता है, myceliums होते हैं, single thread like structure को hyphae बोलते हैं. Bunch of that hyphae which makes the fungal body is known as the mycelium. तो इनके myceliums थोड़े unique है, same. अब इनके myceliums कैसे? So if I draw one of the hyphae over here, so you can see there are, what you can say, demarcations. It is made up of, it is multicellular, but the separating wall between the cells it is been removed over here, you can see, and each cell's nucleus you can see over here. So hence we call it as aseptate. Since there is no partitioning between the cells, we call this as aseptate hyphae. We also simultaneously call it as seniocytic hyphae. Seniocytic means together. So cytic is the nucleus and senio means together. So one or more, that means also one or more. So you can see over here, it looks like a continuous, like a straw. एक straw जैसा hollow tube जैसा ये बन जाता है. Obviously it will have those multiple nucleuses. So this is the feature that you exclusively get in phycomycetes. Asco, basidio हम पढ़ेंगे. Generally these are branched and septate वाले मिलते हैं, हम इधर पढ़ेंगे. यहाँ पे भी जैसे दिया है branch septate, यहाँ पे वैसे नहीं है. So these type of hyphae or mycelium is the feature of phycomycetes. तो ये लर्न करना है, मतलब एंट्रेंस के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स के लिए ऑब्लिगेट पैरासाइट ये इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न द एग्जांपल्स. फिलहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, दैट इज asexual reproduction in funguses is mainly with the help of 2 types, एक कोनिडिया एंड एक ऑब्वियसली हमने पढ़ा था स्पोरेंजियोस्पोर्स. ठीक है, कोनिडिया जनरली एक्सोजिनस होते हैं, वो हमें यहां मिलेंगे, एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि एंडोजिनस होते हैं. बेसिकली उसके 2 टाइप्स, जूस्पोर्स मतलब द स्पोर्स व्हिच आर मोटाइल, व्हिच हैव फ्लैजेला इन देम, सो हम उन्हें जूस्पोर्स कहते हैं. एंड ऑब्वियसली जिनमें फ्लैजेला नहीं होगा, obviously they will be non motile, हम उन्हें अप्लानोस्पोर्स कहते हैं. हम इन्हें प्लानोस्पोर्स भी बोल सकते हैं. ये अप्लानोस्पोर्स obviously which are non motile. सबको समझा है कैसे बनते हैं, ये भी मैंने तुम्हें बताया था.
फटाफट, चाहे तो मैं ये फटाफट बता देता हूँ। सो जब हम जूस्पोर्स या अप्लेनोस्पोर्स की हम बात करते हैं, हमने कोनिडियोस्पोर्स पढ़े थे एंड फिर उसमें हमने देखा था कि कोनिडियस कैसे बनते हैं। वैसे ही अब सपोज अगर ये हाइफे है, ठीक है, सपोज दिस इज द हाइफे, सो इन हाइफे से जो एक टर्मिनल सेल है टेक्स अ शेप ऑफ अ सैक, तो दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम, ठीक है, दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम एंड द ब्रांच और द हाइफे जिससे ये बनता है वो हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, हम इसे क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर, पीएचवारी, ठीक है। एंड फिर इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। Now hence you can see these are enclosed in a sac, hence we are calling it as endogenous. Sac burst होगा and potentially every spore will again form a new mycelium. So अब उसमें अगर बोलो तो flagellated भी spores होंगे तो हम उन्हें zoospores बोलते हैं because they are motile. If they don't have their flagellas, so ये सब non motile है, so हम उन्हें अप्लानोस्पोर्स कहते हैं। सो इस तरीके से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इट विल बर्स्ट एंड इट विल फॉर्म अ न्यू माइसीलियम। तो होप सो सबको ये याद आया होगा जो मैंने ऑलरेडी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी देता हूं एक आधा टाइम ये नहीं हुआ बट असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप जो है ऑफ ईच एंड एवरी क्लास ऑफ फंगस ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंट्रेंस वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कौन से असेक्सुअल स्पोर्स जैसे अभी जाइगोस्पोर, oospore, zoospore, अप्लानोस्पोर, इसमें से कौन से सेक्सुअल है कौन से असेक्सुअल है, कभी कभी कैटेगराइज करने को आता है, तो वो सब तुम्हें याद रखना है। सेक्सुअल जो है, सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं वो हमको बताया, इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी बनते हैं एंड सेक्स ऑर्गन्स फिर ये उधर से गैमेट्स बनाएंगे एंड देन दे विल फ्यूज टू फॉर्म दी जाइगोट एंड उसी से हम लोग को मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक बार अपन oospores कैसे बनते फटाफट देख लेते, मैंने बताया था सेम मतलब ये सेम फंगस है तो फिर जनरली एक ही फंगस का अगर हाइफे है, दो हाइफेज है, तो मैंने बताया था हाइफेज ऑफ सेम माइसीलियम्स अगर दो है तो क्या होगा, इनके ऊपर एक हाइफे के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन बनता है एंथेरिडियम एंड दूसरा दिखाने के लिए मैं ग्रीन ले रहा हूं, दूसरे पे बनेगा oogoonium जो कि फीमेल पार्ट है, ठीक है। फाइनली दोनों में क्या बनेगा, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब, दोनों में अपना अपना न्यूक्लियस बनेगा, इसका न्यूक्लियस अंदर गैमेट्स जो है और इसके अंदर भी न्यूक्लियस बनेगा। फाइनली दे विल बी यूनाइटेड बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब। हमने गैमेट एंजियल कांटेक्ट ये टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये हमने देखा था। फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस यहां शिफ्ट हो जाएगा थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद जब काम खत्म होता है एंथेरिडिया डी जनरेट होगा, सो दिस इज द डाइकैरियन स्टेज, दो न्यूक्लियस तुम्हें वहां दिख रहे हैं। फाइनली ये दोनों मर्ज होके तुम्हें एक न्यूक्लियस जिसे अपन सिंगैमी कहते हैं एंड देन इसके अंदर होगा मियोसिस, 4 सेल्स एंड देन दे विल सिंगैमी होने के बाद मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 स्पोर्स बनेंगे एंड जब ये डिस्पर्स होंगे सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू फॉर्म न्यू फंगसेस, न्यू माइसीलियम। तो ये हमने oospore में पढ़ा था। जाइगोस्पोर सबको सो याद होगा, 2 डिफरेंट हाइफेज होंगे, ठीक है। दो डिफरेंट दिखाने के लिए मैं 2 कलर्स यूज कर रहा हूँ डिफरेंट, सो आई यूज दिस एज एन ग्रीन कलर का। सो इससे प्री गैमेटेंजिया बनता है, इससे भी प्री गैमेटेंजिया, इसमें कलर अलग यूज करना पड़ेगा, इसमें भी एक प्री गैमेटेंजिया बनता है। बाद में उसमें डिवीजन होके एक सेल बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है, देन दीज विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैमेटेंजिया व्हिच आर हैप्लॉइड्स, ठीक है। इवेंचुअली क्या होने वाला है, दोनों का जो सेल मेम्ब्रेन है वो मर्ज होगा टू फॉर्म अ कॉमन व्हाट यू कैन से अ जंक्शन। सो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्स होगा, अभी भी देख रहे हो दोनों न्यूक्लियसेस आर सेपरेट,
सो प्लाज्मोगैमी पहले वो फ्यूज होगा, दिस इज द डाइकैरियन स्टेज दैट यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर। फिर इवेंचुअली इन दोनों में होगा सिनगैमी, ठीक है, इन इवेंचुअली दिस विल लीड टू सिनगैमी एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट। सो ये है, फिर इसके ऊपर वॉल फॉर्मेशन भी होती है एंड देन इट विल अंडरगो मियोसिस टू गिव यू 4 haploid spores and again they will regenerate back to the myceliums. So ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि होता है ज़ाइगोस्पोर्स एंड oospores। आते हैं अस्कोमाइसिट्स पे। तो ये सबको क्लियर है, ये वाला पार्ट आईएमपी है। हाँ, रिप्रोडक्शन मेथड असेक्सुअल सेक्सुअल ऑफ ईच क्लास जो हम अभी देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंट्रेंसेस में इसी के ऊपर ज्यादा जोर होगा। ये कोई नहीं, सबको पता है, ड्राई मॉइस्ट क्लाइमेट, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ये सबको पता है। सैप्रोफाइट्स है, फंगसेस सैप्रोफाइट्स है तो पैरासाइट से होते हैं, तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी मिल रही है, दैट इज द थिंग। सो ये वाला कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, ज्यादातर इसके माइसीलियम एंड असेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं वो मस्ट लर्न है और ये एंट्रेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अस्कोमाइसिट्स की तरफ आते हैं, इसके एग्जांपल में एक ही एक्सेप्शन है ईस्ट which is a unicellular fungus, नहीं तो बाकी सब तो मल्टीसेलुलर ही है। पेनिसिलिन ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए उसका यूज होता है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एस्परजिलस, अब एस्परजिलस के भी स्पीशीज जैसे एस्परजिलस नाइगर वगैरह, तो हम कमर्शियल लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी में भी इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो विटामिन बनाने के लिए, विटामिन सी शायद इससे बनता है, और भी दूसरे कंपोनेंट्स एंजाइम्स ऑब्टेन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इम्पोर्टेंट है, कमर्शियली बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंगसेस है ये। अगर हैबिटेट वाइज जाओ तो वापस वही, जनरली हम बोलेंगे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए इन्हें भी। अगेन दीज आर सब कैटेगरी मिलते हैं, दीज आर सैप्रोफाइट्स, इसलिए डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हो। पैरासाइट्स भी होते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है कोप्रोफिलस। कोप्रो मीन्स fecal matter, dung, and phyllis means loving, so they can also grow on the dung, cow dung or animal waste जो हम बोलते हैं fecal matter, and they can decompose that, so that is one of that is ये यूनिक एक और ऐड हो गया है in case of ascomycetes। अब इनके माइसेलियम्स कैसे रहेंगे, तो सपोज ये माइसेलियम है, so generally हर एक सेल is different, so you can call this as septate। even they form branched hyphae, so branches भी होते हैं, पहले वालों में branches की टेंडेंसी कम है बट यहाँ पे ज्यादा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश की तरह तुम इसे याद रख सकते हो। हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, हम बाकी दो भी देखेंगे एंड वो अगर जल्दी होते तो हम क्या करेंगे, चारों को डिस्टिंग्विश मैनर में एक बार कंपेयर करेंगे क्योंकि वही तुम्हें याद रखना है एंट्रेंसेस के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर तुम कॉलेज एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करो, स्टिल दीज पॉइंट्स आर गुड इनफ फॉर दैट। नेक्स्ट इसका असेक्सुअल, मैंने बताया था कोनिडियोफोर कैसे होता है। सो सपोज दिस इज द हाइफे, सो ये ब्रांच्ड और सेप्टेट हाइफेज है, इधर से ही ब्रांच्ड है तो ये वाला मिलेगा। तो फिर क्या होता है, सडनली किसी एक ब्रांच से एक सेल मॉडिफाई होकर कोनिडियोस्पोर बनता है, फिर ये ओल्डर सेल ये आगे जाएगा, नीचे से माइटोसिस से नया बनेगा, ऐसे करके नीचे छोटे छोटे ऊपर, मतलब दिस इज द ओल्ड सेल, दिस इज द न्यू सेल विच इज बीइंग फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। सो इस तरीके से ये कोनिडियाज कोनिडियोस्पोर बनते हैं एंड यू कैन सी दीज आर एक्सोजिनसली फॉर्म्ड, इसको कोई कवरिंग नहीं है। सो ये जैसे डिस्पर्स होंगे दे विल गिव राइज टू अ न्यू माइसीलियम, ठीक है। सो ये हम इन्हें एक्सोजिनस स्पोर्स कहते हैं, which I have mentioned also here, yes, conidia, so these are exogenous and every spore has potential to develop into a new mycelium and जिस ब्रांच पे ये है तो हम उसे कोनिडियोफोर नाम से जानते हैं, सबको समझा है। एंड देन हमने लास्ट वीडियो में ही देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अस्कोमाइसिट्स भी हमने देखा था, 2 फाइलम्स एंड फिर उसमें सेक्सुअल अस्कोस्पोर्स कैसे बनते हैं मैंने बताया था। सेम अगर ऐसे 2 मतलब इनमें कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते
ठीक है, बट स्टिल दे प्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। गैमेट्स नहीं, सॉरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं बट गैमेट्स नहीं। तो देखते हैं फटाफट कैसे होता है। तो पहले ये दो हाइफेज जो जेनेटिकली सेम है बट दीज आर ऑफ टू डिफरेंट फंगसेस। सबसे पहले ये दिखाएंगे प्लाज्मोगैमी, 3 1 2 3। सो यहाँ पे ये दोनों सेल्स मर्ज होंगे, दोनों के न्यूक्लियस एक साथ वहां होंगे। सो इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। दोनों ने अपने साइटोप्लाज्म्स मर्ज करा लिए हैं। फिर क्या होता है, इन्हीं के ऊपर 1 2 3 1 2 3 इधर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, sac like structure, askal hyphae which will turn into sac, and finally these two cells इसके अंदर आएंगे। हम इसे बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। तो दिख रहा है दो न्यूक्लियसेस सेपरेटेड है, एंड फिर देन दे विल अंडरगो सिनगैमी, ठीक है, दे विल अंडरगो सिनगैमी। तो क्या होगा, सिनगैमी होने से सिनगैमी होने से दे विल फॉर्म अ डिप्लॉइड, मतलब जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर सिनगैमी होने से, एंड देन दिस विल इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये हुआ है। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, वो डबल हो जाएगा, एंड देन इट विल शो मियोसिस, ठीक है, इट विल शो मियोसिस। एंड ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, देखो अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा ये। तो मैं यहाँ पे वापस इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे रब कर देता हूँ। सो आई ड्रॉ दोस स्ट्रक्चर। सो होता क्या है, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे जो सैक बनी थी वो है, ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड उसके अंदर फिर ये जो स्पोर्स थे ये बनेंगे 4 8 हो जाएंगे, माइटोसिस होके 8 होंगे। देन दे विल फॉर्म एन अस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा अस्कोकार्प, एंड देख सकते हो उसके अंदर ये स्पोर्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें एंडोजिनस कहते हैं। एंड हेंस व्हेन दे बर्स्ट ओपन एवरी पोटेंशियल स्पोर इज देयर टू फॉर्म अ न्यू हाइफे, ठीक है, न्यू माइसीलियम। सो दिस इज ऑल विद द अस्कोमाइसिट्स एंड फाइकोमाइसिट्स। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स। सो मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।